Hi, this could be the most important video for your prelims preparation of 2026. So, majorly the video will be dealing about the strategy and the mindset required for the 2026 preparation. Some of you maybe have the mindset that strategies and all those things कुछ नहीं होता पढ़ लेते हैं. But let me tell you, in this video, I would precisely tell you that what should be the things which you should not do and what mindset you should carry for the prelims 2026. Before I proceed further in this video, let me start the session with this scene of Chak De India. In this particular movie, Chak De India, the coach Kabir Singh tells the teammates that the last 70 minutes, whatever is there in the whatever is the duration of the match, can change your life forever. In your case, in the UPSC CSC preparation, the same applies to the last 60 days. And believe me, this is exactly what I will prove in this session. How these 60 days could define your prelims ka game. How these 60 days could be a game changer in your prelims preparation. How these 60 days should be tackled, should be monitored, should be handled in order to increase your chance, in order to be certain with your mains ticket. So, the first thing is this game is now in the battlefield. Now you are going to the battlefield. The 60 days, last 60 days is all about fighting the things on the battlefield. Believe me, believe me. In this examination, the 2 hours which you will be giving to attempt the examination will not matter much, although those are most crucial. But whatever you do in these 60 days will be reflected in those 2 hours. Okay? So please be very ultra attentive. Whatever are your doubts, queries, concerns, you can do let me know in the comment section. I will personally visit all of them. Okay? But एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना. Now, the very first thing which I would like to start the session with is the myths around the last 60 days. Myths around the last 60 days. क्या बच्चों का माइंडसेट में ऑलरेडी होता है या बाहर लोगों से पता चलता है, वो चीज़ों पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. एंड आई विल गिव यू द जस्टिफिकेशन ऑल्सो कि ऐसा क्यों गलत है. ठीक है. फर्स्ट मिथ इज दैट 4 रिविजन्स आर इनफ. 4 रिवीजन कर लिए एंड तक जाते जाते तो बहुत है. And I've seen many of the YouTube videos, many of the people doing this. What I say, 95% of the students or 90% of the students, if they are serious in this preparation, will be able to do at least 4 revisions. First thing. Second thing is that if you're doing 4 revision, that is the stage where beyond which you start recalling the things. पहले रिवीजन के बाद you won't be able to recall much. Second revision के बाद you won't be able to recall the all of it. I mean, third revision के बाद you will be comfortable. After fourth revision you start recalling the facts. So what I'm trying to make a point is the myth which is there, कि 4 revision बहुत है, is something which is flawed, is something which 95% of the aspirants, serious aspirants, see, I'm not counting the entire what I can say, the number of people who are giving this exam, serious aspirants, 90% 95% of them at least reach to the fourth what I can say stage of the revision. But let me tell you very frankly, this is the stage from where the game starts. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 4 रिवीजन के बाद गेम स्टार्ट होता है, तब नहीं होता. 4 रिवीजन के बाद वॉट एवर नंबर ऑफ रिवीजन यू कैरी विल डिफाइन योर जर्नी इन द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स. तो अगर कहीं से ये अभी तक आपके दिमाग में कैरी हो रहा है कि यार 4 रिवीजन कर लेंगे बहुत है, कहीं ना कहीं फ्लॉड है. आप बहुत रिस्क पे हैं. मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, समझो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, बट आप कहीं ना कहीं रिस्क वाली लाइन पे चल रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में याद आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है. ठीक है. सेकेंड चीज़ इज आई हैव सीन पीपल कमिंग टू मी, सर अब जो 60 डेज हैं, देखो समझो पहले सब्जेक्ट्स कितने मेरे पास. आई हैव इकोनॉमी, आई हैव साइंस एंड टेक, environment, geography, history, then I have polity, then I have current affairs. Pardon me if I forgot any one of them. So almost 7 to 8 subjects are there. What we have to do, we have to revise all of them in 60 days. So generally what people have the mindset, 60 divided by 8, so 60 divided by 8 will be around 7 to 8 days. So you will be revising a single subject in 7 to 8 days. Beta,
with that circumstances you will be just able to do single revision, one more revision. So you have to follow me in this session कि mindset क्या रखना है, what should be the mindset, and I will exactly guide you in how many days exactly what you have to do. ठीक है, so have faith on me. So what I'm saying, the you know noise that कि यार एक सब्जेक्ट 7-8 दिन में अब रिवाइज करना पड़ेगा is flawed, एकदम गलत है. I will prove you, है ना, just be with me until the end. So हमें ये दोनों myths के साथ नहीं चलना. Third myth is same strategy for 60 days. From now, all 60 days are not equal. कहीं लिख लेना इसको. Please write it somewhere. From now, all 60 days are not equal. You cannot have the same strategy for all 60 days. You cannot have the same daily plan for all 60 days. I will tell you how you have to do it. What should be the strategy? We have to ensure that whatever is the weightage of the first 15 days is equivalent to next 8 days, is equivalent to next 5 days. We have to compress the things with time. We have to consolidate the things with time. ठीक है, पहली चीज कि भाई 4 रिवीजन इनफ नहीं है. दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट को 7-8 दिन में रिवाइज करेंगे, ये भी गलत है, आप बहुत रिस्की खेल रहे हो. तीसरी चीज कि सारे 60 दिन आपके सेम है, ये भी एकदम फ्लॉड चीज है. क्या करना है मैं आता हूँ, डोंट वरी, आई विल नॉट लीव यू विद द डाउट्स, आई विल एग्जैक्टली टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, एग्जैक्टली टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है. फोर्थ चीज इज दिन रात एक कर दूंगा. भाई करना था तो अभी तक कर लेते थे. ठीक है, जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का मन बनाया था तभी ये थॉट आया होगा दिन रात एक करके पढ़ूंगा. तो अगर होना था तो अब भी हो जाएगा. द मैक्स यू कैन ऐड इज एक्स्ट्रा 1 आवर, नथिंग मोर देन इट, नथिंग मोर देन इट. सिर्फ 1 घंटा ऐड कर सकते हो. कुछ ऐसा नहीं उखाड़ लोगे कि जो अभी आपने 1 साल में उखाड़ा हो. सीधी सी बात है, बहुत सिंपल रखूंगा, बहुत शटल रखूंगा इस चीज़ को. ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ करेंगे. दैट मीन्स वी कैन नॉट एम्फेसाइज मोर अपॉन द सिलेबस कंप्लीशन. और सिलेबस मान लो 0 है आपका, आप सोच रहे हो मैं 2 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँगा, रिवीजन भी कर लूँ. भाई आपको फिर ये नहीं पता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन क्या होती है, या पता भी है तो शायद आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और पता भी है तो आपने पूरा सिलेबस देखा नहीं है अभी. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये रात दिन एक कर दूंगा वाला माइंडसेट इज गुड, बट समथिंग विल नॉट वर्क नाउ. You have to do it. This is mandatorily, this is something which is unsaid, and this is something which every serious aspirant will do. आप कुछ अलग नहीं कर देंगे. अरे यार प्रीलिम्स के बाद भी बहुत बच्चे आते हैं, सर 80 दिन है, आप देखो मैं हर एक दिन कितना, अरे आपके पास घंटे सेम है, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो कुछ नहीं कर पाओगे. तो द थिंग विच विल वर्क इज द स्ट्रेटेजी. यार कैसे करना है, घंटे चेंज नहीं होंगे. घंटे 24 भगवान ने दिए, उसमें से आप कुछ सोने के लिए निकाल लेते हो. आपके पास इफेक्टिवली दम लगा के भी आप निकालोगे तो 14 घंटा निकलेगा. बाकी ऑन एन एवरेज मैंने बच्चों का देखा है 8 से 10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं घड़ी लगा के. 14 घंटे आप बोल सकते हो, सुबह 8 बजे से पढ़ोगे आप रात के 11 बजे तक, या जो भी आपका टाइम स्पेन है. बट बेटा उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेक्स होते हैं, कभी कभी दिमाग चलना काम कर देता है, तो इफेक्टिव 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा ही निकलेगा. ठीक है, तो ये मिथ है. नेक्स्ट है, मेरे पीछे लिखा हुआ है बट मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. इट इज सिलेबस कवरेज बियॉन्ड मार्च. व्हाट यू थिंक कि यार मेरे ना 3 सब्जेक्ट बचे हैं, आई विल कवर ऑल दो 3 सब्जेक्ट्स और मे बी ऑल दोज पोर्शन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स बियॉन्ड मार्च. लेट मी टेल यू व्हाट यू आर डूइंग. सुनना, बहुत ध्यान से सुनना आप क्या कर रहे हो. इन दैट सर्कमस्टेंसेज यू आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिविजन्स फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. जो आपने कर लिया है आप उसका रिवीजन बहुत कम कर दे रहे हो. आप नई चीजें उठा रहे हो जिसका भी आप रिवीजन कर नहीं पाओगे. अल्टीमेटली यू आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग. व्हाट शुड बी द माइंडसेट? माइंडसेट इज मार्च के बाद कुछ नया नहीं करेंगे. नथिंग न्यू विल बी टेकन अप पोस्ट मार्च. whatever you have covered, whatever resources you have covered, whatever you have read will be constant now, will be revised again and again. अगर नितिन सिंघानिया अभी तक नहीं पढ़ी, आप नहीं पढ़ेंगे. अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं, आप प्लीज डोंट पिक देम नाउ. If you have already your notes, your summaries, your handouts, please do them again and again. Do them again and again. अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज अभी उठाई या नितिन सिंघानिया उठाई, बेटा 8 से 9 दिन 7 दिन चले जाएंगे. अब एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप गलत नहीं जा सकते. तो द माइंडसेट मार्च के बाद कंप्लीट करेंगे, या लेट्स से 10-15 दिन में ये हो जाएगा, फिर अगले 15 दिन में ये हो जाएगा. प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक. इन दैट प्रोसेस आपके रिवीजन्स, नंबर ऑफ रिवीजन्स कम हो जाएंगे. आपने जो बाकी सब्जेक्ट में मेहनत किया है, बाकी टॉपिक्स में मेहनत की हुई है, रह जाएगी.
जनरली अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, शायद कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा होगा, बट हो सकता है आपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रखे हैं। पॉलिटी यार आपने सोचा था लक्ष्मीकांत से तो पढ़ रखी है, मैं डीडी बासु भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, तो शायद वो रह गया है। मैं कह रहा हूँ उसे अब रहने दो। हिस्ट्री में हो सकता है आपने स्पेक्ट्रम कर रखी है, बट आपने कुछ और 2-3 बुक आपके पास एडिशन है, आपने लूसेंट का भी कुछ फैक्ट्स डाल रखे हैं कि यार बाद में पढ़ लूंगा। मैं बोल रहा हूँ अब वो रहने दो, ठीक है। कुछ नया नहीं करना है, जो कर लिया उसी पे हमें गेम खेलना है। वी हैव टू इंश्योर जो हमने पढ़ा है उससे मेरे सवाल बने, उसमें कुछ ऐसा ना हो जो एग्जाम के प्रेशर में मैं भूलूं, ठीक है। अब बात आती है हमारे बूट कैम्प के बच्चों की। अगर बेटा आप बूट कैम्प में हो, हमने मेजर सिलेबस कर लिया है, 10% सिलेबस हमारा बचता है एक्स्ट्रा क्लासेस वाला। व्हाट आई एम सेइंग, हम वो कर लेंगे, बट वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, हम आपको करा रहे हैं। वो कर लेंगे, वो करना है, ऐसा नहीं है वो भी आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो ऑल दो 3 क्लासेस, 3.5 क्लासेस या 4 क्लासेस विल डू, है ना। वो करना है, वो कर लेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने खुद से कुछ मन बनाया हुआ है, मार्च के बाद आप कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है। देन आती है रिलाइंग ओनली ऑन नॉलेज। अब यार दिस इज समथिंग विच इज ट्रू विद 90% ऑफ यू। वॉट यू डू, 90%। सुनना बेटा, अगर आपके मार्क्स कहीं 50 मार्क्स के आसपास है, उससे कम है ना, आप ये वाली गलती कर रहे हो। वॉट यू इग्नोर इन द प्रोसेस, फर्स्ट थिंग इज यू इग्नोर द टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। मतलब आप पूरे टेस्ट को एक ही बार में अटेम्प्ट करके रख देते हो, 2 घंटे में आप सिर्फ एक बार पेपर को गो थ्रू कर रहे हैं। आपको पेपर को 3 लेवल पे गो थ्रू करना है। पहला 1 घंटा 10 मिनट, देन और 40 मिनट मान लीजिए, देन अगले 10 मिनट। अब ये एंड के 10 मिनट भी बहुत क्रूशियल है। टाइम स्पेन देखो, 1 घंटा 10 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट। करना क्या होता है, 1 घंटा 10 मिनट में जो भी सवाल आपको आते हैं पहले वो सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आपने 40-45 सवाल सॉल्व कर दिए, उसके अगले 40 मिनट में कुछ सवाल में आपको एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा, लॉजिक यूज करना पड़ेगा, तुक्के भी मारने पड़ेंगे। 50% आपने सॉल्व कर लिया, 50% आपको कुछ हवा नहीं लग रही, लॉजिक काम नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़े। तो या तो लॉजिक लगाएंगे, एप्टीट्यूड लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। बट अगले 40 मिनट में भी आप मानिए मेरी बात, आप कम से कम 30 और सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आधे आपने सॉल्व कर रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आए एंड के 10 मिनट। इन एंड के 10 मिनट पे आप वो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्योर आपका गैस वर्क चल रहा है, प्योर गैस वर्क, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपने हो सकता है 70-75 सवाल सॉल्व किए हैं, आपको और 10-15 सवाल में गैस वर्क लगाना पड़ेगा, है ना। एंड दिस टाइमलाइन आई एम सेइंग इंक्लूडिंग द ओएमआर फिलिंग। मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट में, 1 घंटा 5 मिनट आप पढ़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, 5 मिनट में ओएमआर भरेंगे। सेम 40 मिनट में, 30-35 मिनट में आप सॉल्व करेंगे, 5 मिनट ओएमआर भरेंगे। देन 10 मिनट में, 7-8 मिनट में देख लीजिए फटाफट फटाफट क्या तुक्के मारने हैं, नहीं मारने, क्या गैस वर्क लगाना है, नहीं लगाना। हो सकता है 7 मिनट में आप 10 क्वेश्चन करें, हो सकता है 5 करें, हो सकता है 15 करें, टोटली डिपेंड्स हम कहाँ आके अटक गए, ठीक है। अब करना कैसे है, क्यों करना है, इस पर हम बात करेंगे बहुत प्यार से, साइंटिफिकली आई विल टेल यू इन सम अदर वीडियो। इसमें नहीं, स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। यार पेपर में बैठ के ना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। एंड दिस नीड्स मॉक्स, या आपने मॉक दिए हो, यू शुड नो योर एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। चलिए उस पर किसी दिन और बात करेंगे। देन द नेक्स्ट मिथ इज सी सेट। अभी देखिए, पहले तो हमने और बहुत बातें की हैं, अभी भी कुछ बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि सी सेट में सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करके चलते हैं, कुछ क्लास की डीपीपीज मिल गई, कुछ वर्कशीट्स हो गई, 1-2 टेस्ट दे दिए, हो गया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का आंसर निकालना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म विद इन द टाइम फ्रेम। तो यू हैव टू सिमुलेट नाउ, स्टार्ट सिमुलेटिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन द टाइम फ्रेम। एंड अब अगर मैं बोल रहा हूँ विद इन द टाइम फ्रेम, हर क्वेश्चन का टाइम फ्रेम अलग होता है सी सेट में। बेटा सी सेट में डोंट टेक इट कि आपको हर क्वेश्चन के लिए सेम टाइम मिल रहा है, ठीक है। अगेन मतलब सब बच्चों को लगता है कि यार 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट है, तो हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट हो गया। ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जनरली हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो जाए, कुछ क्वेश्चन को रेस्पेक्ट देनी होती है, सॉल्वेबल होते हैं वो क्वेश्चन, बट 4 मिनट लग जाए उसमें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि सी सेट में आपको उतने ही टाइम में उस क्वेश्चन को सिमुलेट करना है। अब ये थोड़ा हम लोग सी सेट 500 में करवा भी रहे हैं, 500 का कुछ सैंपल्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है।
तो ये गलतियां नहीं करनी कि सी सेट कर तो लिया, खत्म कर लिया, बट सिमुलेट नहीं किया, एग्जाम हॉल में आता है बट टाइम पे नहीं हो रहा, वो गलती नहीं करनी है। तो अब अगले 60 दिन में सिमुलेशन पे काम करना है हमको। देन 2 सब्जेक्ट एक दिन में, भाई बच्चों वाली चीजें छोड़ देते हैं, हो गया ये। अब एक दिन में पढ़ रहे हो, 2 अलग अलग सब्जेक्ट 3-3 घंटे पढ़ोगे, जमाने लग जाएंगे उसका रिवीजन कंप्लीट करने में। मेक इट अ रूल फ्रॉम नाउ, सिंगल डे सिंगल सब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड सी सेट। वो अलग चलता रहेगा 2-2 घंटे, करंट अफेयर्स सी सेट 2-2 घंटे चलता रहेगा, बट एक दिन में अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो पूरे दिन इकोनॉमी ही पढ़ोगे, अदर देन करंट अफेयर्स एंड सी सेट। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो 2 दिन में रिवीजन नहीं होगा, आप उसको 10 दिन खींचोगे। ब्रेक होती है बेटा, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, कॉपी बंद की, वापस उठाई, एक रिदम ब्रेक होती है। बनाने में ही 15-20 मिनट लगेंगे, आप 2-2 घंटे बैठ रहे हो, बनाने में 15-20 मिनट, एंड करते में और 15-20 मिनट लथार्जिक हो जाओगे, 1.5 घंटा है उसमें भी आधे घंटे दिमाग नहीं चला, 1 घंटे में 10 पेज पढ़ोगे, बंद कर दोगे, फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इन अ सिंगल डे सिंगल सब्जेक्ट, प्लीज लेट्स ग्रो अप, लेट्स ट्राई टू हैंडल दी 60 डेज मैच्योरली। ठीक है, चलिए, तो हमने मिथ्स की बात कर ली। पहली चीज, 4 रिवीजन इनफ नहीं है, अगर आप करके जा रहे हैं आप रिस्क ले रहे हैं। दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट 7 से 8 दिन में रिवाइज होना चाहिए, 60 डिवाइड बाई 8, नॉट ग्रेट, नॉट गुड, एकदम फ्लॉड। तीसरी चीज, सेम स्ट्रेटजी फॉर 60 डेज, अगेन समथिंग विच इज डिजास्टर, समथिंग विच इज कि आप एग्जाम को समझे ही नहीं। चौथी चीज, दिन रात एक कर दूंगा, यू कैन हार्डली एड 1 आवर, बट यू कैन नॉट इंश्योर कि आप बहुत कुछ अलग कर देंगे जो आपने अगले एक साल में, पिछले 1 साल में नहीं किया है। Then syllabus coverage beyond March is something which should be avoided. You should be utilizing April and May just for the revision of whatever you have already covered. Then we are relying only on knowledge. Again, a flawed thing. Apart from this, first thing is test attempt strategy. Second thing is logic and aptitude while solving the question. Will help you like anything. For this, I am conducting the Trinetra sessions again. Mind you, on 31st March. On 31st March, we are having the logic session. Trinetra. A wonderful program. See, कहीं और जाओगे ना, you will find this as elimination. Elimination को ही बोलते हैं। अरे logic is not elimination. Logic is not at all about elimination. Logic is about reasoning the statements, using whatever knowledge you have to answer the statement, or then at last eliminating it or selecting it. Okay? Please do not miss the Trinetra. The Trinetra will be conducted on 31st of March. And it is mandatory for every one of you who are part of boot camp to repeat it. कोई पैसे नहीं देने जो boot camp का बच्चा है, जो त्रिनेत्र का बच्चा है, ठीक है, you have to repeat it. Now let's come to what should be the strategy. Maybe you are watching this in March or maybe April, hardly matters. How we will deal that, I will divide this time into 3 phases: March, April and May. ठीक है, fair enough. मार्च भूल जाओ, जो भी दिन बचे हैं भूल जाओ, अप्रैल की बात करते हैं. When I talk about April, my simple target is I have to ensure 4 revisions in April. I have 1 month. I have to ensure 4 revisions. Again, अब देखो, ऐसा नहीं होता that you will divide 30 by 4 and you will reach to the number of revisions as 7.5 days. एक revision 7.5 days. Again, this is flawed. We have to consolidate, make it compact and keep on reducing. I have done it for you for a reason. End तक सुनोगे सब समझ में आएगा. The reason I will tell you. First thing is, I have divided the timeline from 1st April to 12th April. अगर आप मेरे बच्चे हो, if you have followed me so far, you should know one thing, that I give you the target of doing the entire revision R1, one complete revision by 21st of March. ये मैंने आपको बोला था. क्यों? क्योंकि 22 मार्च को हमारा रणभूमि था, ऑल इंडिया ओपन मॉक था. मैंने आपको बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि यार 21 मार्च तक एक रिवीजन कंप्लीट कर लेना, 22 को रणभूमि दे देना, कोशिश करना उसकी कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रिवीजन इनफ नहीं है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था रणभूमि देना आपको रियलाइज कराने के लिए कि एक रिवीजन से कुछ नहीं हो रहा. चौथे रिवीजन तक पहुंचते पहुंचते आप चीजों को इंटरलाइज करना चालू करेंगे. ठीक है, तो एक रिवीजन हम कर चुके हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ पेंडिंग होगा, उस पर आते हैं अभी. अब 1 से 12 अप्रैल तक, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 12th अप्रैल, यू विल कंप्लीट 1 more रिवीजन. इफ यू आर रणभूमि स्टूडेंट, सॉरी, बूट कैंप स्टूडेंट,
आपके पास समरीज हैं 40-50 पेज में। आई थिंक यू हैव द एंटायर सब्जेक्ट एंड लेट मी गारंटी यू वन थिंग, आप जाओ अपने दोस्तों को देखो, उन्होंने यहाँ से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से सिलेबस कंप्लीट किया हो, कंपेयर करो एक बार कि उनके नोट्स आपके नोट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। यू विल रियलाइज दैट योर नोट्स राइट नाउ आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट, मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, मोस्ट व्हाट आई कैन से सिस्टमैटिक नोट्स। एक चीजें हमने एक एक जगह पे कवर करके खत्म की हुई हैं, कुछ कहीं नहीं किया। तो बेटा एज ऑफ नाउ बिलीव मी दिस आई एम टेलिंग यू सिंस 6th of January, you are the best contender right now for cracking this prelims. It's just you have to put the things on the right what I can say track, nothing less nothing more. बस सुन लो, करते जाओ। अभी तक आपने किया है, अप्रिशिएटेड, आई अप्रिशिएटेड टोटली। मतलब मैं बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, क्लास में स्ट्रेंथ देखता हूँ, द स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम इन द ऑनलाइन बैचेज, ऑफलाइन। सो वी यू आर फॉलोइंग, आई नो इट, पता चलता है यार लाइव के स्ट्रेंथ से पता चलता है, ठीक है। तो यू पीपल आर फॉलोइंग इट, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज लेट्स कंक्लूड इट, है ना, ऑन अ गुड नोट। क्योंकि ये 60 दिन अब डिफाइन करेंगे कि हमारा कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो 1 से 12 तारीख तक एक और रिवीजन करना है, जिसको मैं R2 बोल रहा हूं, रिवीजन 2, R2 पहली चीज। दूसरी चीज आपको देखो, अगर आपको याद होगा मेरी पहली वीडियो, मैंने आपको क्या बोला था, हर दिन 50 क्वेश्चन देने हैं सब्जेक्ट्स के। जैसे जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, हर दिन 50-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ। मैं उसे अब चेंज कर रहा हूं। अब अवॉइड प्रैक्टिसिंग डेली 50 क्वेश्चंस। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, एवरी थर्ड और फोर्थ डे अटेम्प्ट अ मॉक। लेट्स से दीज आर 12 डेज। 4 दिन आपने कितने भी कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज किया हो, मर्टर नहीं करता, आप ऑलरेडी एक रिवीजन कर चुके हो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अटेम्प्ट अ मॉक। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, देखो फरवरी तक मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मॉक्स लगाइए, आप किसी और इंस्टीट्यूट का जाके मॉक दो। मैं इस वीडियो में आपको ये बोल रहा हूँ, जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स को खोल के देखो, अपने नोट्स खोल के देखो, तुम्हें एक चीज रियलाइज हो जाएगी। देखो मेरा मॉक हो सकता है यार, मैंने अपनी क्लास से पूछ लिया हो, भाई और इंस्टीट्यूट मॉक करा रहे हैं, वो थोड़ी मेरी क्लास देख के पेपर बनाएंगे। बट अगर उनमें सवाल आ रहे हैं मेरी क्लास से, कहीं ना कहीं आपने जो क्लास की हुई है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। शायद कुछ को होगा, कुछ को नहीं होगा, शायद कुछ को कम होगा, कुछ को ज्यादा होगा। मैं बोल रहा हूँ सबको सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जाइए, शून्य के मॉक्स नहीं लगाने, आप किसी और इंस्टीट्यूट के 3 मॉक्स लगाइए, और 3 डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लगाइए, देखिए सवाल आ रहे हैं नोट से या नहीं, आपसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे मुद्दा अलग है। हो सकता है आपको चौथे रिवीजन के बाद सॉल्व करना आप स्टार्ट करें या नंबर आना स्टार्ट हो, वो मुद्दा ही अलग है। बट क्या क्लास से जो हमने पढ़ाया उससे सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के 3 इंस्टीट्यूट के 3 मॉक लगाओ, इसी वीडियो के नीचे आप बताएंगे। और अगर अभी तक आपने किसी और इंस्टीट्यूट के मॉक दिए हैं और आप बूट कैंप के बच्चे हैं, या लेट से आपने फॉलो किया हुआ है, मुझे वीडियो के कमेंट में चाहिए कि आपने क्वेश्चंस देखे या नहीं देखे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमने जो कवर किया उससे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब। एंड व्हेन आई से क्वेश्चन देखे नहीं देखे, एटलीस्ट 70 और 75% क्वेश्चंस आई बिलीव यू शुड नो एटलीस्ट द टॉपिक ना। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नहीं हुआ, हो सकता है कुछ ट्रैप हो सकता है याद ना आ रहा हो, वो अलग मुद्दा है, बट क्वेश्चन देखा हुआ लगना चाहिए। वरना बेटा हमने शायद कुछ गलती की है 100%, और देखा हुआ लग रहा है, आप मानो मेरी बात, यू आर द बेस्ट कंटेंडर राइट नाउ। बस आपको मेरा हाथ नहीं छोड़ना एंड डे तक। मैं 23 तारीख को भी आपसे मिलूंगा, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। करो तो सही यार, भीड़ है अभी मार्केट में, सच में भीड़ है। छोड़ो, आते हैं इधर। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक क्या करना है, जो आपने 12 दिन में रिवाइज किया, आपको वही चीज 8 दिन में रिवाइज करनी है, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको 8 दिन में रिवाइज करना है। मैं ऐसे कह रहा हूँ R3। अगेन आपको 2 ओपन मॉक दे देना है, मत दो शून्य के और किसी इंस्टीट्यूट के दो, और अलग अलग के दो, सो दैट यू हैव द वैरायटी, ठीक है। और ओपन मॉक का फायदा ये होता है यार, हर इंस्टीट्यूट ना अपना बेस्ट देता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन क्वालिटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू गो इन पब्लिक, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता ना, हमने तो कवरेज की हुई है, आप देखे देखो। देन लेट्स से 21 अप्रैल टू 25 अप्रैल अगेन हम एक और रिवीजन करेंगे, हम पहुंच जाएंगे R4 तक। R4 तक आ गए। अब आता है इसके बाद क्या, इसके बाद बेटा 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को
यू हैव द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ शून्य IAS रणभूमि 3। मुझे और इंस्टीट्यूट के मॉक्स में आपके क्या मार्क आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप 200 में 200 ले आओ, मेरे लिए जीरो है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ, बट आई विल बिलीव द मोमेंट यू क्लियर द कट ऑफ फॉर रणभूमि 3 कि आप बहुत डिसेंट जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन 4 के बाद यू शुड बी इन द कंडीशन ऑफ बीटिंग द कंपटीशन एटलीस्ट। हो सकता है हम अभी भी कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाए, बट एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप ये कंक्लूड करेंगे तो आप क्लोज होंगे, आउट नहीं होंगे। हो सकता है 5 7 10 मार्क्स रह जाए, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा इस टेस्ट के बाद। ठीक है, पिछला टेस्ट हुआ, आज बैठ रहा हूँ, ये टेस्ट होगा, इसके बाद बैठेंगे एंड यू विल एग्जैक्टली नो क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कितने दिन में क्या करना है। दिन आते हैं मई 1 से 23। ब्रॉड गोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इस टेस्ट के बाद वापस बैठेंगे अपन। ब्रॉड गोल दे रहा हूँ आपको, द ब्रॉड गोल इज 4 रिविजन्स अगेन। द मोमेंट यू क्रॉस एटलीस्ट 4, मेरी बात समझना, एटलीस्ट 4 रिवीजन और चाहिए मेरे को। हो सकता है 5 कर लें, हो सकता है 6 कर लें, 4 तो करेंगे। शायद कुछ लोगों को मजाक लगे, बट अगर आपने बूट कैंप के नोट्स बनाए हैं, आप मतलब, अब मैं थोड़ा इमोशनल हो सकता हूँ बट लेकिन ठीक है सुनो, अगर यार बूट कैंप के नोट्स बनाए हैं उसके बाद ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत हमने तो चलो कुछ नहीं की यार। ठीक है, हमने कुछ नहीं की, आपने बहुत किया बेटा, आपको तो हर क्लास अटेंड करनी थी। मेरे को इकोनॉमी पढ़ाना था, समाधान पढ़ाना था, और मैं भी लेट से और साइंस एंड टेक या जो भी मेरे को पढ़ाना था, आपको तो हर क्लास में बैठना था। आप पूरे 12 12 घंटे बैठे हो, आपने तो बहुत अलग लेवल पे, स्टड लेवल पे मेहनत की हुई है अभी। ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग में रखो। तो 1 मई से 23 मई तक एटलीस्ट 4, और ज़्यादा हुए तो मैं बात करूंगा 26 मई के बाद। 24 मई को मेरा एग्जाम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्च में क्या करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यार मार्च में मेरे को क्या करना है, हो सकता है आपके पास 4 दिन है, 5 दिन है, आज ही वीडियो देख ली तो हो सकता है आपके पास 6 दिन है। ठीक है, तो देखिए मार्च में आप सिर्फ अपनी पेंडेंसी पे काम करिए। कुछ क्लास के पीडीएफ्स रह गए होंगे, मैंने आपको डिजीजेस दिया था, डिफेंस एक्सरसाइजेस दिया था, फूड एंड फ्यूल बोला था खुद नोट्स बना लेना, है ना, विटामिन मिनरल्स। हो सकता है कुछ क्लास के टॉपिक्स आपके थ्रू रह गए हो, आपने कुछ क्लासेस ना की हो, बीमार पड़ गए, मिस हो गई, कोई दोस्त के वाले कुछ भी था, आपको कुछ इमरजेंसी थी, तो प्लीज कंप्लीट योर पेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एट द मोमेंट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विच अंकित रौथान सर पोस्टेड इन योर टेलीग्राम चैनल। 3 4 घंटे का था, पोस्ट 1942। क्या आपने वो कर लिया? देन आर्ट एंड कल्चर के अंकित सर ने पोस्टेड 2 वीडियोस, क्या आपने वो कर लिए? नहीं किए तो वो सब पेंडिंग है आपका। प्लीज स्किम थ्रू द नोट्स, मैं रिवाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने बूट कैंप के नोट्स लेके बैठिए जस्ट आफ्टर द वीडियो, करो ये काम यार। मैंने बोला रात दिन एक करने वाला कंसेप्ट गया, वो तो अनसेट ट्रू है, बट उसमें भी स्ट्रेटेजी कैसे बेटर बनानी है उस पर बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद 2 घंटे पढ़ने का मतलब नहीं बनता, बट स्ट्रेटेजाइज करने का मतलब बनता है कि यार अब मेरा आगे क्या करना है, कैसे करना है, एक एक मिनट कैसे ऐसे इंपैक्टफुल बनाऊं कि मेरा सीधा मार्क्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो आप स्किम थ्रू करिए अपने नोट्स को, जो भी पेंडिंग रह गया उसकी लिस्ट बनाइए, पहली प्रायोरिटी आप उसे कंप्लीट कीजिए। देन मैंने आपको R1 कंप्लीट करने बोला था 21 मार्च से पहले, हो सकता है आपके 1 2 या 3 सब्जेक्ट्स रह गए हो, ट्राई टू कंप्लीट दोज R1। अगर ये कोई पेंडिंग नहीं है तो हो सकता है इधर कुछ पेंडिंग हो, इन दोनों में से भी कुछ पेंडिंग नहीं है, what you have to do, you have to give one extra revision which I will not count in R1 R2 R3 of your weak subject। अब हो सकता है आपका इकोनॉमी वीक हो, साइंस एंड टेक वीक हो, पॉलिटी वीक हो सकता है कुछ भी वीक ना हो बट मार्क्स ना आ रहे हो, what you will do, you will pick up that subject, you will give a extra revision of that subject। post this if you remember, हमें कुछ नया नहीं करना अदर देन द पेंडिंग क्लासेस, कुछ नया नहीं करना अदर देन द पेंडिंग क्लासेस जो मेरी रह गई हैं, आप सबको पता है। बजट बचता है, कुछ एक पॉलिटी की क्लास बचती है, समाधान की 2 क्लास बचती है, कुछ 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 पेंडिंग है 10%, वो हम कर लेंगे, उसके लिए 4 दिन आप दे देंगे, हो जाएगा। बट उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे नया, आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिविजन्स करेंगे। तो एग्जैक्टली आई कंक्लूडेड कि भाई अब आगे
कैसे करना है, डे बाय डे वी हैव प्लान, ठीक है। अब इन अ डे लेट्स प्लान, एक दिन में क्या करना है, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगेन आई विल टेक द हाइपोथेटिकल और मे बी द रेंज 7 AM to 11 PM। हो सकता है यू वेक अप एट 6, सो शिफ्ट योर रेंज टू वन आवर अबव। हो सकता है यू वेक अप एट 5, सो शिफ्टेड 1 hour अबव। हो सकता है यू वेक अप एट 1 PM मे बी, सो शिफ्टेड बिलो अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स एट व्हाट टाइम यू वेक अप। व्हाट आई एम सेइंग नाउ बाबा, व्हाट आई एम सेइंग नाउ, फ्रॉम 7 AM to 9 AM देयर आर 2 hours। कितने घंटे हैं, 9 - 7, 2 घंटे हैं आपके पास। In this 2 hours generally people do the breakfast or maybe the daily course, nana hai aapko, maybe you have to go for the daily routine activities, those activities. I am saying this combinedly will take 30 minutes. You have the effective time of 1.5 hours now. पिछली वीडियो में I guided you very beautifully that you have to make a fact list. आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिस पे आप लिखेंगे, सिर्फ पेज नंबर लिखिए और टॉपिक लिखिए कि भाई मेरे को नेशनल पार्क इस पेज नंबर से रटने हैं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इस पेज नंबर से रटनी है। मेक अ लिस्ट सब्जेक्ट वाइज। ये 1.5 घंटा आप रोज उसे रटेंगे, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। 9 से 2 बजे, सुबह 9 से 2 बजे कितना टाइम हो गया, 9 से 12 3 घंटे प्लस 2 5 घंटे हो गए। इन 5 घंटे के बीच में आपको शायद लंच करेंगे, आप दोपहर का खाना खाएंगे। 30 मिनट मैंने माने आपने दिए, और 30 मिनट ले लो भाई, दूर जाना है, मैस है, दोस्तों के साथ खाने जा रहे हो, ऑल्दो नहीं करना है अभी, मान लो अगर आपने आधा घंटा बताया तो ये आपका बेनिफिट है। ये रात दिन एक कर दूंगा वाला सीन हो जाएगा कि भाई आधा घंटा आपने बचाया, आप सिर्फ आधे घंटे में अपना खाना खा के वापस बैक टू टेबल। तो एटलीस्ट आई एम सेइंग 4 घंटे तो है आपके पास, आप उसमें एक सब्जेक्ट करिए। लेट्स से आपने इकोनॉमी उठाया, आपके पास 12 दिन है बेटा, 12 दिन में आपको 6 से 7 सब्जेक्ट करने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 2 दिन है। करंट अफेयर्स तो डेली चल रहा है, सीसेट डेली चल रहा है, बताता हूँ कैसे। तो ऑन एन एवरेज 2 दिन आ गए, इकोनॉमी 2 दिन में, इन्वायरमेंट 2 दिन में, साइंस हो सकता है कोई 1.5 दिन में हो, कोई 2.5 दिन में हो, क्या दिक्कत है। हिस्ट्री हो सकता है 2 की जगह 3 दिन ले ले, क्या दिक्कत है। एवरेज 12 दिन का आना चाहिए। प्लान करो कैसे करोगे। 4 घंटे मैंने ऐसे दे दिए सब्जेक्ट 1 को। देन 2 से 5 का टाइम, यही टाइम क्यों, पहली चीज क्योंकि इसी टाइम पे आपका सीसेट का एग्जाम होगा, बार बार ये बात बोलता हूँ मैं। इस टाइम पे नींद लेनी है लो, वरना कोशिश करो एग्जाम से 1 महीना पहले दोपहर की नींद लेना बंद कर दो, एटलीस्ट 1 महीना पहले, ठीक है। अभी लेनी है ले लो, सो दैट प्रोडक्टिविटी सही रहे आपकी, वरना शाम के टाइम में आप आधा पढ़ोगे आधा खो जाओगे, है ना। हो सकता है आप 1 घंटा सो लिए, आप एटलीस्ट 2 घंटे सी सेट को देंगे। आपने खाना खाया 2 बजे, या लेट से आपने खाना खाया 1 बजे, फिर आप पढ़ने बैठे 2 बजे आपने सब्जेक्ट बंद कर दिया, 2 से 3 आप सो लिए, 3 से 5 आप सी सेट को प्रैक्टिस करेंगे। देन 5 से 7 अगेन 2 घंटे हैं। आई डोंट थिंक कुछ आपके पास एक्टिविटी है, चाय है तो हार्डली 15 मिनट लगेंगे, लेनी है ले लो, नहीं लेनी मत लो। 2 घंटे हैं, ये 2 के 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी मैंने आपको समाधान में कराया, वॉट एवर आई मेड यू डन इन द समाधान क्लासेज, यू विल रिवाइज इट। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर कंफर्टेबल इन दोज नोट्स, स्टार्ट पिकिंग अप समाधान पीडीएफ्स, और वॉट एवर यू विल डू लेटर, डू दैट। लेवल 3 लेफ्ट आउट टॉपिक्स, होमवर्क वाला टॉपिक्स, ठीक है। बट ये 2 घंटे फिक्स हो गए यार, करंट अफेयर्स को देने ही है, 2 घंटे मेरे फिक्स हो गए। अब टाइम आ जाता है 7 से 11 का, करंट अफेयर्स बंद कर लीजिए, 2 घंटे में जितना हुआ किया, बाकी बंद, डेली करना है, 2 घंटे डेली करना है, बंद कर दो उसको। 7 से 11 बजे 4 घंटे हैं, मैं मानता हूँ आप डिनर करेंगे। डिनर में मैंने आपको आधा घंटा दिया, और बचे मेरे पास 3.5 घंटे। अगेन आप वही सब्जेक्ट उठाएंगे जो आपने यहाँ किया था, गलती मत करना 2 सब्जेक्ट की। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत बच्चों से बात की है, बहुत बच्चों की गलती करते हुए देखा है। आप उसे पंचवर्षीय योजना बना लोगे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को। ये टाइम आ गया है मैच्योरिटी दिखाने का, जो लोग गाइड कर रहे हैं करने दो उनको। आप अगर मेरे बच्चे हो, इफ यू फॉलोड मी अंटिल नाउ, प्लीज फॉलो मी फ्रॉम नाउ, ठीक है। आई विल नॉट लेट यू डाउन। आपको एक चीज तो 100% मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, द मोमेंट यू कम आउट फ्रॉम द एग्जाम हॉल, यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। आई प्रॉमिस यू दिस, यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। रिजल्ट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, आई प्रॉमिस यू दैट थिंग, ठीक है। आप खुद मेरे को मैसेज करेंगे, सर आई गिव माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, ठीक है। अब 11 बज गए रात के। जनरली आई वॉन्ट यू टू स्लीप, 8 घंटे की मैं आपको डिसेंट साइकिल दे रहा हूँ सोने की। 1 घंटा इधर भी नैप ले लिया तो 9 घंटे हो गए, बट नहीं लिया तो भी ठीक है। 8 घंटे एटलीस्ट आप सो रहे हैं।
हो सकता है कुछ लोगों को कम नींद आती हो, कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आती हो। ज़्यादा वाले अवॉइड करें, 8 घंटे सो बहुत है। कम वाले लोग व्हाट यू कैन डू, पोस्ट 11 अंटिल यू गो टू बेड। देखो उठने का टाइम इज फिक्स, आई वांट टू वेक अप लाइक अ सोल्जर एट अ फिक्स टाइम। फिक्स टाइम पे ही उठना है, भले ही आप रात के 4 बजे सो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 7 बजे आप उठोगे, आपकी गलती, आप क्यों लेट सोए, पनिश योरसेल्फ। बहुत सिंपल, उठने का टाइम फिक्स है। जब तक नींद नहीं आ रही, कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम, नींद ना आने तक का टाइम, कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम विद सम वीडियो, डू द असिस्टेड स्टडीज। आपको मेरी कोई सब्जेक्ट वीक रह गया, लेट से किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, हमारी बूट कैम्प की वीडियोस को चला लो, अब तो मैंने ओपन कर दिया, यू कैन रिवाइज देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, प्लीज रिवाइज थ्रू द वीडियोस। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, वीडियोस ओपन करके बैठ जाओ, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान योर डेली शेड्यूल। अगेन, every fourth day in this, every fourth day here, you will replace that with the open mock। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन मॉक एवरी फोर्थ डे, खत्म। ये है मेरा पूरा अप्रैल। मैंने आपको पूरा अप्रैल बताया, डेली कैसे प्लान करना है ये बताया। अगेन आई विल मीट यू आफ्टर द 26 अप्रैल का रणभूमि। प्लीज़ 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 फॉलो कर लो यार, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, हमने, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने कोई मेहनत नहीं की आपके सामने, आप हर क्लास में बैठे हो, आपने हर क्लास के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट यू नो वॉट एवर एफर्ट्स यू हैव डन विद अस शुड बी फाइनली कंक्लूड, ठीक है। तो मेहनत कर ली, वो कंक्लूड नहीं हो रहा कि यार आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं कि मैं बहुत बार पढ़ लूंगा और मैं भी नो मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है, बट फाइनली एग्जाम हॉल में जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ लोग बोलते हैं आप कितने मॉक्स लगाएं, भाई जो मैंने नंबर ऑफ मॉक्स बताए मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मत जाओ इससे बियॉन्ड, इतना कर लो कम से कम। हर दिन मॉक लगा रहे हो, हर दूसरे दिन मॉक लगा रहे हो, रिवीजन हो नहीं पा रहे, मॉक में वही 50 55 50 55, किसी दिन 80 आ गए तो खुश हो रहे हो। अरे भाई वो एग्जाम आसान था इसलिए आपके 80 आ गए, या आपके तुक्के लग गए इसलिए आ गए। ना तो यूपीएससी का एग्जाम आसान आने वाला है, ना उसमें तुक्के आपके काम आएंगे शायद, ठीक है। तो थोड़ा रिस्क कम लेते हैं, सर्टेनिटी बढ़ाते हैं, सो दैट जो भी एक्स्ट्रा टाइम हमें प्रीलिम्स के बाद मिलेगा उस सर्टेनिटी कम करने का, मेंस में लगा के मेंस भी फोड़ेंगे, एंड पक्का फोड़ेंगे, इससे ज़्यादा बेटर मेंस प्लान कर रखा है हम लोगों ने, है ना। कंटेंट में ऑलरेडी फोड़ रखा है। वज्र में लास्ट ईयर के आप रिव्यूज आप खुद ही उठा के देखो भाई, फिनोमिनल वी हैव प्लान द मेंस। 3 दिन में करंट अफेयर्स करा के, पूरा मेंस करा के आपको एकदम रेडी कर देंगे विद प्रैक्टिस लाइव पीवाईक्यूज के साथ। वी प्लान्ड इट लाइक एनीथिंग, एनीथिंग नो वन कैन टच, नो वन कैन बीट। तो बट स्टेज तो आए वो, ठीक है। देन वी हैव द, आई हैव द फाइनल एडवाइस फॉर यू, प्लीज प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एंड दैट इज वेयर आई वाज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग कि भाई आपको अल्टीमेटली माइंडसेट पता चलेगा क्या रखना है। मैंने आपको वीडियो में एक चीज बताई है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, रिवीजन 4 के बाद द रिवीजन्स यू इंक्रीज विल ऐड योर मार्क्स। 4th तक तो आपको इंटरनलाइज करने में लग जाएगा कि आपको चीजें अब याद होना स्टार्ट हो रही हैं, समझ में आना स्टार्ट हो रही हैं, यू आर एबल टू कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। दिस विल गो अंटिल द 4th रिवीजन, बट व्हेन यू सी द गैप बिटवीन द R1 एंड R4, द गैप इज ऑफ 3 रिवीजन। मानते हो मेरी बात, 4 - 3 1, सॉरी 4 - 1 3 गैप है। लेट्स से अ पर्सन हु हैज डन 8 रिवीजन्स and a person who has done 11 revisions, and I will ensure some of you are doing even 11 and almost all of you are doing even 8, ठीक है। I will ensure, that is my task, you have to just follow करना। देखो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ मुंह चला के बोल रहा हूँ कि यार कर लो, मैंने आपके नोट्स बनवाए हैं, हम लोगों ने एज अ टीम आपको हेल्प की है, ठीक है। हेल्प नहीं की है तो एटलीस्ट वी हैव डिलीवर्ड वॉट एवर वी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द बैच, जस्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइट कंक्लूजन नाउ टुगेदर, ठीक है। तो R8 से R11 तक there is a gap of 3 revisions, but these 3 revisions and these 3 revisions are not equal। इधर जिसने पहला रिवीजन किया है और जो चौथे रिवीजन में, बेटा जमीन आसमान का अंतर है उसमें, बट इधर 8वां कर लिया 11वां कर लिया, अंतर बहुत कम होगा, हार्डली एक क्वेश्चन का अंतर होगा। सो बियॉन्ड 8th रिवीजन द डिफरेंस ऑफ मार्क्स विल नॉट बी मच, बट व्हेन यू सी R1 R2 R3 R4 द डिफरेंस विल बी ह्यूज, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 तो अप्रैल में अचीव करने हैं और 4 हम मई में करेंगे, एंड वी विल इंश्योर, सी दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, वी विल इंश्योर वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर अ डिफरेंट टाइमलाइन, अ वेरी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूट करना आपका काम है, ऑर्डर हम दे चुके हैं,
कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज रीच अस। यू हैव नाउ वेरियस हैंडल्स, मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आपके पास कस्टमर केयर के नंबर है, आज देम कॉन्टेक्ट करा दो मेरे से, कुलदीप सर से, अमृतान सर से, अंकित सर से, और मे बी सम अदर मेंटर फ्रॉम द टीम, स्वाति मैम, अदर प्लेयर्स, राइट। काफ़ी अच्छे लोग हैं अभी टीम में। प्लीज इंश्योर दैट एग्जीक्यूशन में अगर कुछ ऊपर नीचे है हम हैंडल कर लेंगे यार। देखो समझो, मान लो आपसे R4 नहीं हुआ, यू आर एबल टू रीच R3, वी विल कॉम्पैक्ट द थिंग्स हियर, वी विल इंश्योर एटलीस्ट वी आर डूइंग R5 और R8, सॉरी। हम ये समझ रहे हो, क्योंकि हर एक सब्सिक्वेंट रिवीजन में टाइम कम लग रहा है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 8 और 11 में मैंने बोल दिया कोई अंतर नहीं है ना। तो बस अपने आप को बैक करो, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज what you have to do in the comment section, do let me know if you have any doubts, and in the comment section just do let me know whether you were able to complete R1 or not if you are bootcamp का बच्चा, ठीक है। ऑल्सो एक चीज प्लीज 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 प्लीज, एक सेपरेट कमेंट में करना ये, ठीक है। अपना R1 वाला स्टेटस मुझे एक अलग कमेंट में बताना। एक और कमेंट आई वांट कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड, इफ यू आर समवन हु हैज अटेम्प्टेड द मॉक्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, सुनने आया इसमें तो ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट्स में अगर आपने मॉक किए हैं, दिए हैं, तो आर यू फाइंडिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लासेस, आर यू कंफर्टेबल नाउ इन द दोज मॉक्स। मार्क्स नहीं आ रहे अलग मुद्दा है, रिवीजन के साथ मार्क्स बढ़ेंगे, बट एटलीस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएंगे। दिस मेक्स अस हैप्पी, ठीक है, दिस मेक्स अस कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज हाउ वी विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द नेक्स्ट 60 days coming. Thank you. Signing off, Sugam Mansal.